ठीक है, but the theory class is random. When I say random, what does it mean? That we are not going after a topic. We are going to pick up several topics, some that we may be familiar with, some that we are not familiar with, some we may have heard but don't know anything about it beyond what we have read. Some could be a general knowledge. Which year are you all? Second, third, fourth. No first years. Okay, lovely. Okay, so this is going to be a fun class. It's not going to be heavy, right? So different topics, different. Oh, where is the first one? Different topics that we will work on. Cool? Okay. Indian food is known for its curries, amongst many other things, but one thing that flows freely through the country is curry, right? I need you more alive. So, do you know which is the world's oldest first curry? Anybody? Okay. Anybody? No. Okay. So, we have some archaeological remains of a pot, earthen pot that we got out of this place called Farmana. Farmana is an excavating site in Haryana, which has, where when we excavated, we uncovered a part of Harappan civilization. A part of it was in other states as well, in Rajasthan, other parts of UP, then the entire, you go to the Pakistan side, India side. This is a huge Indus Valley civilization, Mohenjo-daro, Harappan civilization. So in Haryana, there is this place called Farmana. When the excavations were done, so what happened is they dug out these pots, clay pots, which they presumed were used for cooking because of the shape with which they were. अब कोई होता है अर्दन पॉट, वो पानी के लिए है, कुछ स्टोरेज के लिए है, कोई फ्रूट्स के लिए है, कोई प्लेट है, और वो अगर कोई पॉट विद लिड है तो हाँ इसको स्टू करने के लिए, पकाने के लिए. ना 4000 ईयर बैक उसमें क्या बना था? हाउ डू वी नो? सो देयर इज अ टेस्ट कॉल्ड स्टार्च ग्रेन एनालिसिस. सो दिस स्टार्च ग्रेन एनालिसिस टेस्ट, it works on the fact that if they scrape off the inner sides and they do this test to understand what was cooked in it. So it's a fair bit of, it's not with ultimate certainty, but it is said that there are these 4-5 things that were cooked in that pot. It could have been that separately, could have been together, but we'd like to put them together and say, okay, 4500 years back, in that civilization, they were cooking something as a curry, because you also found remains of chicken bones fossilized in tandoor. So a roasted chicken or a tandoori chicken or chicken on fire is also one of the oldest foods, but we are talking about curry. Came out to be these 5 ingredients. In fact, this is, I'll give it away, this is salt. So you can take that off if you want, but these are the 4 key ingredients that were cooked together, which then we say is possibly the first recorded or decoded curry of India. Any guesses? What starts with T? Which ingredient? Tomato? Very good. It can't be tomato, because most probably tomatoes were brought to India by Portuguese way later. ये तो मतलब कब की बात हो रही है? 4500 साल पहले. वो तो 1000 साल पहले आए थे. उनसे भी 3500-4000 साल पहले की बात हो रही है. तो टर्मरिक. वेरी गुड. जिंजर, गार्लिक, बनाना नहीं, ये अलग है, ये तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए डाला. और बार्ले नहीं. बेलीफ. बेटा क्या अदरक लहसुन और बेलीफ खाएगा? और बी से क्या होता है? नहीं नहीं. बी से बंगाल होता है? और बंगालियों को क्या पसंद है? बी से फिश. हाँ,
Thank you, sir. Yes, brinjal, bangan. Bangan. Interesting. It's one of the oldest discovered veggies in India, along with ginger, garlic, turmeric, which is basically haldi. But what is it? Is it a root, shoot, fruit, rhizome? What? It's in roots. So you go. So these are the recorded that this was cooked together in a pot, and we have a fair assumption that mustard was also there. So mustard oil possibly could have been, and if they were already having cattle, there must be ghee. Could be, but ये assumptions है क्योंकि 4,500 आपको कल क्या खाया था याद नहीं, but to find out something, but this is with certainty these things were cooked in that pot together. So it's safe to assume first recorded curry that we have in India is bangan ki curry, which Bengalis love. Nahi? You don't love bangan? I am told you everybody loves bangan. बेगुन बेगुन अच्छा बेगुन बेगुन तो पसंद है. हाँ तो बोलो. नो सर. यस सर. व्हाट इज दिस? इट्स अ लवली डिश. बेगुन भाजा, बेगुन भरता, भरता. That's the pronunciation. Bharta. Interesting. You understood how your theory classes are going to be? Yes. Very good. Now that we have spoken about curry, what do you think? Where does this word come from? What does it mean? We simply say chicken curry, mutton curry, this curry, that curry. What is the meaning of curry? Has anybody ever thought? Does it sound Hindi, Sanskrit, Marathi, Bengali, Rajasthani, Bhopali? This word South Indian, huh? Sanskrit curry, possible, very good. What else? But what does it sound like? Haji? Maybe what language do you think it sounds like? Like he said, na? Sanskrit word kadi se aa sakta hai. Possible. Isn't it very English sounding? Curry, curry. Yes or no? Okay. So there is no definitive evidence where this word came from. There are certain assumptions we have. One is that it came from the word kadi, काढ़ना. किसी चीज को काढ़ते हो. काढ़ना means slowly stewing it, which essentially is a curry. The English could have given the name curry, but there is a reason to why they gave this name curry, C-U-R-R-Y. Because in South there is a word called kari, K-A-R-I, which is meat. So it is believed that in Madras, now Chennai, olden day Madras, where the British had their stronghold for trade and their offices and everything, they would ask, and they were Indian cooks, they would say, okay, what is made today? We would like to eat curry, basically meat, curry. And curry then got that word into a generic term for a meat which is cooked with either dry or with liquid. And possibly from kari came curry. This is another thought. So there are different reference points that we get, but we often get this word curry in lot of Indian cookery books which were written by the British somewhere in the 18th century, 19th century. उस दौरान पे खूब सारे नाम Hannah Glass, G-L-A-S-S-E, Hannah Glass, उनकी एक किताब है where she mentions the word curry. उससे पहले भी है, but mostly British reference, because if you look at your own individual language, like you are from Bengal, in Bengali language, is there a word curry? You have kasha mangsho,
Kausha. Kausha. Sir, jhol. Kausha. Jhol is the word. Or jhol is generic, but every dish has its own unique name. You don't go and order chicken curry. You say Murgirir Mongsho. या मतलब मेरे प्रोनाउंसिएशन थोड़े ऑफ है बंगाली के. कैसे बोलते हैं? मुगरीर मोंग मुर्गीर मांगशो. हाँ, मिथिला से हो तो चलो वहाँ के बताओ कोई डिशेस के नाम. अब तो खीर हो. आलू की सब्जी भी बनती है तो आलू की सब्जी बोलते हैं. तिलगोड़ की सब्जी. हाँ, तिलगोड़ की सब्जी. आलू मटर की सब्जी. आलू करी नहीं बोलते कि आज हमारे घर में आलू करी बनी है. अरबी की सब्जी. अरबी की सब्जी सूखी हो या रसेदार हो. रसा वर्ड है. तो आप कहीं पे भी देखोगे मटन करी, चिकन करी, पनीर करी, ये करी इज वेरी लेटेस्ट. इन आवर लैंग्वेज वी डोंट यूज द वर्ड करी. वी हैव इंडिविजुअल नेम्स फॉर एवरी डिश. लाइक रोगन जोश, वी डोंट से रोगन जोश करी. बिहार का मीट चंपारण मीट, वी डोंट से चंपारण करी. Now understand, maybe hypothesis, maybe it was difficult for British to pronounce. Merely being an Indian, I can't pronounce Bengali. For British to pronounce every word was different. So they gave names: meat curry, chicken curry, this curry, that curry, prawn curry, egg curry, wo curry. A prawn curry, fish curry. Down south when you go, you can say and you will get it. But every fish curry, every prawn curry has a name like chingri malai. Or you go to down south, LP fish curry. और LP हाँ LP फिश करी बोलते हैं. मतलब स्पेसिफिक नेम्स है, बट उनके लैंग्वेज में जाओगे करी वर्ड इज एडेड एट मच लेटर स्टेज. हैव यू हर्ड ऑफ मद्रास करी पाउडर और सिंपली करी पाउडर? यस सर, नो सर? ओके, सो देयर इज अ पाउडर कॉल्ड करी पाउडर which was earlier called as Madras curry powder, which is basically like a garam masala with certain ingredients, right, which was made in India for the British or by the British also, could be, maybe. Who made it, we don't know. Possibly some Indian guy made it. Why was curry powder made? Even before that, let me tell you, where all in the world do you see curry powder? Which all cuisines of the world uses curry powder? Any idea? बेटा कंट्री पूछ रहा हूँ तो स्टेट बता रहा, रीजन बता रहा. साउथ ऑफ इंडिया तो है ही ना. साउथ में तो बहुत फेमस है. हालांकि साउथ में भी डिशेस के अंदर हम नहीं डालते. हाँ जी, इजिप्ट? नो, आई डोंट थिंक सो. यस, वेरी गुड. गूगल किया किसने? हाँ, कैसे पता जापान? बताओ. Fantastic. What's your name? Disha. Very good, Disha. Japan. They have a, जैसे जापानीज फूड सोचते हैं हमारे क्या आता है, सुशी, साशिमी. घर पे वो नहीं खाते. मेरी मम्मी ने आज घर पे सुशी बनाई है, नहीं. वो रेस्टोरेंट स्टाइल फूड है. बनाते होंगे, वो रेस्टोरेंट स्टाइल फूड है. इट्स लाइक यू वांट टू ईट तंदूरी चिकन और बटर चिकन. घर पे बनता है, तंदूर है, मार्केट जाना पड़ता है ना. घर पे क्या बना है? अरबी की सब्जी. यही होता है ना? Yes or no? Yes, yes. So there is a home food and there is a restaurant food. Japan का restaurant food is sushi, sashimi, where the trained chefs who do it. Home food में उनका जो, जैसे हमारे यहाँ की जो कॉमन डिश है बिरयानी, है ना? Across states अलग अलग बिरयानी. उनकी है कात्सुकारे. कात्सुकारे, which is basically their version of chicken curry. How are they using curry? And उसके अंदर एक ingredient है curry powder, Madras curry powder. Why is Japan using curry powder which was made in India? You go to Singapore chicken curry uses curry powder. Few Thai dishes they use curry powder. Indonesia uses curry powder. Germany uses curry powder. Maybe because of British's colonial. Wonderful, absolutely. So German में sausage है, curry sausages, curry wurst बोलते हैं, इसको गूगल करना. Which is basically Germans are known for some very
brilliant sausages and cold meats that they do, and in one of them they sprinkle curry powder and then they give it to you. Right. So, how did all of this happen? It comes from the desire to eat Indian flavors, the flavors of the curry, where you've made it easy for yourself to make that curry. I'll explain how. The British loved Indian food because they were in India. A lot of their kids were born in India, grew up eating Indian food, were working in India, and when they went back to England or any other country, they missed Indian food. We need that spice. Now, Indian food is complex. To make a curry, you have 20 things. They possibly got confused and they devised, or somebody gave it to them. Sir, take this powder, one powder, just add salt and add this powder. It has turmeric, it has chili, it has pepper, it has fennel, it has coriander, it has everything. One spice, put in everything, marinate your meat and grill, no problem. Make a curry, no problem. And that's how the curry powder, Indian curry powder, traveled with the British to wherever they colonized. In Africa also certain parts, yes. Egypt, I'm not sure. But definitely towards the British colonies of Africa, a lot of them, they use curry powder. Japan, why? Because Japan Navy and British Navy, they're working together, and British naval ships पे जब Japanese काम कर रहे थे, तो British जो कैंटीन, जो नेवल, जो उस पे नेवी की कैंटीन होती है शिप पे, उस पर करी पाउडर फ्लेवर्ड खाना मिलता था, and that's where the Japanese also caught on to the curry powder. So is the Southeast Asia. So how interesting is curry, Indian food, Indian cuisine, how it has inspired so many different countries and their cuisines as well. How important it is that, right? It's a matter of pride also, and joy also that curry. Halaki in India we don't use curry powder. Why? Because we open our masala dani and all those powders are separate and we use as we desire, because we have an understanding of what to use, where and when and how much. Right? Madras curry powder या curry powder को Google करना आज शाम को रात को and see different types of curry powders and how different countries use curry powder and the word curry. Interesting? Now let's go to something very simple, which is bananas. All of a sudden detour. It's a very interesting theory class. We're talking about bananas now. Lot of so in Harappan civil excavations, when they were done, we also found traces of bananas. So it was a popular belief that bananas could have originated in India, right? And from there it spread to the world. क्या हुआ बेटा? जोक सुना दे मुझे भी. नहीं हुआ कि फोन रख दो नीचे. Now this particular fruit, actually the origins is Papua New Guinea. Papua New Guinea is an island country close to Australia. I think Australia के western coast पे, if I'm correct. और यहाँ पर पहली दफा बनाना उगा. And ये Pacific Ocean के पास है, so यहाँ से people they came, trade happened, so it is possible it traveled to India from here, and you know varieties अलग अलग होती हैं, you crossbreed and you make it into the fruit that we know today. तो यहाँ से हमारा जो major trading partner Southeast East Asia रहा है, and it has also been the Middle East. So it is said, again it is just said, nothing in writing, that when Alexander came in, he first ate bananas in India and he was very fascinated. And he said, चलो यार इसको तो अपन Greece लेके जाएंगे, Macedonia, where he was from, Macedonia लेके जाएंगे. But he died on the way, I think somewhere in Babylon, if I'm correct. He died, he couldn't reach back. But it is said that in Babylon, we were not, at that point of time, we were not calling it banana. But it is said that during somewhere in the Middle East, one of the soldiers saw this fruit for the first time. And he said, यार ये तो उंगलियों की तरह लग रहा है. If you look at this, it looks like हाथ की उंगलियां, कि किसी का हाथ ऐसा ना, उंगलियों की तरह क्लस्टर. तो अरबिक में उंगलियों को कहते हैं बनान, B-A-N-A-N.
एंड वहां से द वर्ड बनाना केम। ले जाते कैसे होंगे बीच में? ऐसा सड़ नहीं जाता? कच्चा लेके जाता है बेटा। अभी भी जो साउथ में उगता है और अगर नॉर्थ में आ रहा है, कच्चा ट्रैवल करता है, पकता धीरे धीरे है। क्योंकि वो लोग को जाने में 6 मंथ्स 7 मंथ्स लग जाते होंगे। कितने दिन रहता है, बिल्कुल रहता है। सी रूट भी था ना, सी वॉज ऑलवेज देयर, लैंड में टाइम लगता है। अभी भी तो सी रूट से कितने फल आते हैं, इम्पोर्टेड फ्रूट्स आते हैं, इम्पोर्टेड वेजीज आते हैं, कैसे तो सब एयर ट्रैवल थोड़ा ना करके आते हैं। अभी पानी की कमी नहीं होती किसके लिए? छीटने में। अरे ऐसे तुम सब्जी थोड़ा ना बेच रहे हैं, अंडरस्टैंड। वो अब लॉजिस्टिक्स तो मुझे भी नहीं पता है, बट दिस इज द पॉपुलर थ्योरी दैट फ्रॉम बनान केम बनाना विच लुक लाइक अ क्लस्टर ऑफ fingers. It is said that Alexander kind of enjoyed it. Papua New Guinea से है, and one of the best varieties you find it in India, or one of the best varieties across the world is Cavendish, Cavendish. Cavendish is the variety of banana जो US ने पॉपुलर करी हुई है, which is also a big problem because most of the world grows in commercial quantities Cavendish banana. उसका एक ड्रॉबैक है। What is the drawback? What you can think of? ऊंचा बोलो ना बाबू। जो सर बाकी वैरायटीज है वो कोलैब हो जाएंगे। हाँ, वो हो ही गई है क्योंकि कमर्शियली अब मैक्सिमम कैवेंडिश ही उगाते हैं। बाकी वैरायटीज उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि अगर कोई ऐसा बैक्टीरिया या कोई फंगल इन्फेक्शन कैवेंडिश बनानास को लग जाता है तो सारी क्रॉप्स रॉट हो जाएंगी, और अगर उस पर उसका इलाज हमारे पास नहीं है, एंड ऑल ऑफ अ सडन बनाना इकोनॉमी या बनाना की मार्केट बिल्कुल ठप हो जाएगी। और क्योंकि एक्सपोर्ट होता रहता है तो वन मार्केट टू द अदर बनाना का वही जो इन्फेक्शन है कैन कैरी फ्रॉम वन टू द अदर। ट्रीज एंड प्लांट्स लाइक अस ह्यूमंस, उनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होता है, उनको फंगल इन्फेक्शन भी होता है, उनको स्ट्रेस भी होता है, सब कुछ होता है। दे आर ऑल्सो लिविंग बींग्स। हम सोचते नहीं ना ऐसे, तभी तो फंजीसाइड और अलग अलग तरीके के उनके दवाइयाँ उन पर छिड़काव क्यों करते हैं, ताकि वो इन बीमारियों से बचे, राइट। सो अंडरस्टैंड कि वो एक वैरायटी को अगर कीड़ा लगता है या खराब होता है जिसका इलाज हमारे पास नहीं है, जैसे उनको कोविड हो जाता है, मस्ती से बोलो, कोविड अगर बनाना को हो जाता है तो उसका कोई इलाज नहीं है, तो कुछ इलाज नहीं है, इसको क्रॉप कोलैप्स करने लगेगी। आ जाओ। अगेन बनाना भी लोग क्या करते हैं, मोस्ट कंट्रीज दे ईट जस्ट द फ्रूट। आई थिंक वी आर वन ऑफ दोज कंट्रीज दैट यूज द इंटायर प्लांट। क्या क्या खाते हैं इसका? फ्रूट, स्टेम, फ्लावर, लीव्स आर यूज्ड, राइट। इसके अंदर जो स्टेम है, बनाना स्टेम इज वेरी इंपॉर्टेंट। It is a high source of nutrition, high in potassium, high in fiber, low in calories, high in nutrition. हम सबकी प्रॉब्लम क्या है, अभी तो यू आर ऑल यंग कि भाई यू हैव टू रिड्यूस, डाइट कम करो, कैलोरी डेफिसिट खाओ। सो दिस इज वन इंग्रेडिएंट विच इज लो ऑन कैलोरी, हाई ऑन न्यूट्रिशन, एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंगली प्रिपेयर्ड। मोस्ट ऑफ यू आर फ्रॉम बंगाल। बंगाल में बनता है बनाना स्टेम, दिल्ली में नहीं बनता, पंजाब में नहीं बनता। क्यों पसंद नहीं करते? क्यों नहीं पसंद करते? परफेक्ट, क्योंकि बनाना की प्लांटेशन वहाँ पर नहीं है, नेचुरली। देखो जितने भी आपके इंग्रेडिएंट्स हैं वो जिस एरिया, जिस जहाँ पर वो उगते हैं वहाँ पर नेचुरली वो ज़्यादा कंज्यूम होते हैं। So जहाँ banana can transport well, once the stem is cut, it does not have much time to be transported in its prime quality or the prime stage to be transported everywhere. Hence you don't see banana stem being used in places where banana is not naturally grown. That's why east में, south में,
entire plant is used. नॉर्थ में हम लोग जैसे आई एम फ्रॉम दिल्ली पंजाब, पीपल का पत्ता है या बरगद का पत्ता, उसके मोड़ के उसकी वो बना देंगे, कोन बना देंगे, उसमें कोई पापड़ी चाट चटनी कुछ फ्रूट काट के दे दिया. साउथ में क्योंकि बनाना लीव्स इतने बढ़िया थे अच्छे से, तो उनका खाना उसको उन्होंने परोसा, उसमें पैक करके उन्होंने कुक कर लिया. सो देयर आर डिफरेंट थिंग्स. और हाँ, बनाना जो प्लांट है, ट्री नहीं होता, प्लांट जो है वो लाइफ में एक बार फ्रूट देता है, उसके बाद खराब हो जाता है. खराब नहीं होता, वो चलता रहता है. फ्रूट नहीं दूंगा मैं, तो उसको काट देते हैं. लेकिन जब उसे काटते हैं तो यहाँ से काटते हैं, रूट से अपरूट नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे अंडर द रूट एक ये तो जूम भी हो जाता है. वेरी गुड, आई एम लर्निंग न्यू थिंग्स. ये इसके अंदर का एक बड़ा सा एक मास होता है, इसमें से नए शूट्स निकल आते हैं. सो वेयर दिस गोज देयर न्यू वंस दैट आर ऑलवेज स्प्राउटिंग. ये बढ़ता है, ये फूल बन देता है, फूल इस्तेमाल करो, उसका फल बनता है, फल इस्तेमाल किया, काटा, अपने आप नया शूट आ जाए, आता रहेगा आता रहेगा. जो न्यू वन है वो तो देगा ना fruit? हाँ बाबू, तभी तो न्यू है ना, तभी तो उसको बढ़ने देते हैं, फिर उसको भी बढ़ते हैं, उसका फल फूल लेते हैं, उसको काटते हैं, फिर न्यू वन. ऐसे तो फिर न्यू वन नहीं देगा तो कभी बनेगा नहीं ना. ओके, एकदम से हमने गाड़ी मोड़ ली बटर चिकन की तरफ. टिक के बैठेंगे नहीं. ओके, व्हाट डू यू थिंक बटर चिकन इज बिलोंग्स टू विच स्टेट? पंजाब और दिल्ली. तो दिल्ली है पंजाब है? पंजाब है. दिल्ली है पंजाब है. और कोई है? हरियाणा यूपी? वहाँ पंजाबी से अच्छा, वहाँ पंजाबी इसमें. और it's not a dish from Punjab. It could be a dish from a Punjabi or made by Punjabis, but it's not a dish of Punjab. It's a dish which can best be traced back to Delhi. और कितनी पुरानी? बहुत पुरानी डिश है ना. सारे खाने वाले इतने पुराने, पॉसिबली 1950s. उससे पहले maybe there was, but difficult. 1950s is possibly when my parents were born. जब वो पैदा हुए थे उनके करीब करीब वो डिश भी शुरू हुई. It's not a very old dish. So it's very interesting. It is Delhi, not Punjab, as a state, made by Punjabis. Now there is a battle, ongoing battle in the courts, if you know or don't know. So there are two restaurant companies which claim that they own the butter chicken. They started, their forefathers started the butter chicken. One of the one came in Shark Tank. हाँ जी? One of the companies restaurant came in Shark Tank also. हाँ, you're right. So they have a conflict. It's a very cute conflict. कि हमने बनाया, हमने बनाया, हमने बनाया, हमने बनाया. The conflict जो है आपको मैं explain करता हूँ. It's interesting to know. So पहले butter chicken बना कैसे? So there were two people, Kundan Lal Jaggi and Kundan Lal Gujral. These two gentlemen used to work apparently in a restaurant of the undivided India, which is now Pakistan. So तब पाकिस्तान नहीं बना था. Before partition, they were working in a restaurant, and after the partition happened, they migrated to Delhi. दिल्ली आ गए और यहाँ पर apparently they started working in a restaurant or they opened a restaurant, and यहाँ पर बटर चिकन बना, उन्होंने बनाया. apparently that is what is believed. This is a story. There is no documentation कि वाकई इन दोनों ने करा था या इनमें से एक ने करा था, किसी और ने किया था. We don't know. Understand? These are stories. These are claims. There is a certain merit to it. 100% नहीं है, but there is credible merit to it. What happened कि तंदूरी चिकन जब आप ऑर्डर करते हो रेस्टोरेंट में कितनी देर में आता है? 20-25 minutes, maybe 30 minutes. Yes, 30 minutes भी लग जाते हैं. Yes or no? Yes. वहीं पर अगर आप
तंदूरी रोटी मांगते हो कितनी जल्दी आती है? 5 मिनट्स, 7 मिनट्स, 8 मिनट्स। अगर बहुत लेट हो गया, बहुत ज़्यादा ऑर्डर है तो थोड़ा हुआ, अदरवाइज 5-7 मिनट क्विक रोटी बनने में टाइम नहीं लगता। सो understand, as a restaurant practice, which you must have seen the guys who worked in kitchens, when your kebabs are being made in a restaurant and where they expect के peak hours में हमारे orders अब आएंगे, what do? You half cook your kebabs. Chicken को भी, mutton को भी, fish को नहीं करते, prawn को नहीं करते, because they cook very quickly. या bigger cuts हैं तंदूरी चिकन के किसी के, half cook करके रखते हो। बैंक्वेट पार्टीज के लिए भी, बैंक्वेट पार्टीज के लिए भी। तो यहाँ पर भी इन लोगों ने यही किया। द स्टोरी गोज दैट बोथ ऑफ देम हाफ डन करके रखा है कि कस्टमर आएगा जल्दी जल्दी देना है। और हुआ क्या कि कई दिन ऐसा होता था कि वो बच जाता था, इट वुडंट सेल। आज कस्टमर कम आए, उन्होंने सोचा 20 लोग खाएंगे, आए 10 लोग तो 10 चिकन बच गए, अब वो ड्राई हो गए, एंड दैट इज मनी सिटिंग देयर। सो व्हाट दे डिड इज टुक इट आउट, कट इट इनटू स्मॉल पीसेस, एडेड टू अ पैन, एडेड बटर क्रीम के, ड्राई हो गए तो मॉइस्ट करते हैं, करी डाल दी, खूब सारा मक्खन डाल दिया, उसको घुमा दिया, एंड हेंस इट इज सेड दैट बटर चिकन वाज बॉर्न। बिकॉज अंडरस्टैंड, बटर चिकन इज 2 इंग्लिश वर्ड्स। हम बोलते हैं मुर्ग मखनी, उसका हिंदी अनुवाद करके, बट द नेम ऑफ द डिश वाज ऑलवेज बटर चिकन, एंड विच इज वेरी स्ट्रेंज। डू यू नो ऑफ एनी अदर डिश which has 2 English words built into a dish which we love? है ऐसा कोई और? मे बी हो, बटर चिकन दोनों इंग्लिश वर्ड्स हैं। अदरवाइज हम होते रोगन जोश, कोरमा, खलिया, हाँ, पोटैटो, पनीर बटर मसाला, पनीर बटर मसाला, मक्खन मसाला नहीं। So there has to be something. So maybe they wanted to highlight the dish and called it English में बटर चिकन, कि भाई बटर पाया और चिकन है क्या, चलो बटर चिकन। Now the conflict is, इनके जो आगे बच्चे, इन्होंने जो रेस्टोरेंट चेन इन्होंने खोली, बाद में इन्होंने खोली और दोनों बना रहे थे। नाउ दे बोथ क्लेम कि जी हमने करा है, बट व्हेन दे वर वर्किंग टुगेदर नोबडी टुक क्लेम के मैंने बनाया। सो वी डोंट नो कि कुंदन लाल गुजराल साहब है, कुंदन लाल जग्गी साहब है, किन्होंने बटर चिकन अपेरेंटली इन्वेंट किया, और ये अभी कोर्ट में चल रहा है केस। सो इट्स अ वेरी स्वीट केस कि चलो कौन कर रहा है। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ बटर चिकन. This is for you to understand. All these things will come in very handy when you are talking to a customer, when you're trying to understand a cuisine, trace its cuisine, trace things, ask questions. जैसे मैंने बोला कि भाई बनान क्यों, बनाना वर्ड क्यों आया, कहाँ से है, क्यों है, कैसे है, करी पाउडर। तो कल को आप यूरोप जाते हो और आपको कुछ जगह पे मिलते हैं कि करी मसाला है, करी पाउडर लिखा है, अरे भाई ये कैसे है, कोई इस चीज़ ने इनोवेशन किया? नहीं, there's a history to it. Right? Now we come to काठी कबाब versus burrito. Very different. So यहाँ पे बंगालीज कौन है, कोलकाता से कौन है? अच्छा मैडम आप बताओ, और कोई नहीं बताया। काठी कबाब is from which place? अच्छा काठी कबाब खाया आपने? काठी कबाब नहीं खाया? अच्छा काठी रोल बता दो। हम काठी कबाब बोलते हैं, बेवकूफ़ है। हाँ कोलकाता रोल बोलते हैं, उसे काठी रोल भी बोलते हैं। वाई इज इट कॉल्ड काठी रोल? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काठी? व्हाट इज द काठी शेप? स्क्यूअर काइंड ऑफ रैपिड। यू आर हाफ करेक्ट हाफ नॉट। हु विल टेल मी यहाँ पे और कौन है जी कोलकाता से? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काठी? हाँ जी स्टिक। और लकड़ी की काठी, काठी का घोड़ा, गाना सुनो। So correct. Now understand, काठी kebab means simply a kebab which has been skewered on wooden skewers or wooden sticks, right? It is, and in olden times either you would have metal skewers or wooden skewers which you will skewer and roast. Wooden skewer is cheaper. मेटल स्कीवर्स फॉर एन स्मॉल एस्टैब्लिशमेंट रोड साइड पे कर रहा हूँ, मेरे लिए महंगा टू बाय, सो मैं वुड पे भी स्कीवर करके मैं इसको कर रहा हूँ। तो जब मैं मीट को बारबेक्यू करता हूँ ऑन अ वुडन स्कीवर, इट इज कॉल्ड काठी कबाब। एंड इट इज सेड दैट ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम व्हेन इन कोलकाता
that the street food of Kolkata has always been famous, that they were ordering kathi kebab, and because kebab is always served with across India, with what? What are the accompaniments to a kebab? Roti, naan. Any bread, whether it's a paratha, roti, naan, whether it's a rumali, whether it's a ulta tawe ka paratha, Mughlai paratha, whatever it is. The concept is roti पे बोटी, bread, उसके ऊपर meat, chutney, salad और खाओ. So you would get काठी कबाब, you will get a bread with it. और प्याज है, चटनी, जो भी. जब ऑफिस की ब्रेक आपको मिली है 20-25 मिनट की, आप ऑफिस से आए, अभी आप बैठे, अब आप खाओगे करके आपको वापस भागना है. सो यू नीड थिंग्स फास्ट. सो सम अक्लमंद व्हाट ही डिड, रोटी पे डाली बोटी, इस पे डाली चटनी, इस पे डाला प्याज, गोल घुमा दे, ले भाई चलते चलते खा ले. इट्स ईजी टू ईट. ऐसे तोड़कर खाना, फिर प्याज, फिर चटनी, इट्स डिफिकल्ट. बट व्हेन यू रोल इट अप, इट इज ईजी. सो दैट्स वेयर द काठी रोल केम इन. और काठी कबाब, और हम लोग जैसे दिल्ली में काठी कबाब ही बोलते हैं, बट काठी कबाब रोल है, दैट्स द राइट वर्ड. और काठी रोल है या कोलकाता रोल है, तो यहाँ से फेमस हुआ. फिर किसी ने मैदा डाला, उसमें अंडा डाला, किसी ने कुछ डाला, किसी ने नूडल्स डाल दिया, तो पता नहीं क्या क्या डाल दिया. सो दिस इज वेयर इट कम्स. सो काठी कबाब की ये बैकग्राउंड है. वहीं पे बरीटो खाया है? नहीं खाया. तू तो क्या क्या मिस करा हुआ है तूने बेटा. अरे बरीटो मैक्सिकन खाइयो, जाइयो आज मार्केट में खा के. हाँ, तो बरीटो क्या होता है मैडम? It is a wrap in which there is rice, pulses, all kinds of meat, veggies, all are. परफेक्ट, बिल्कुल सही कहा आपने. सो बरीटो भी रोटी पे बोटी है, बट वो मैक्सिकन स्टाइल है, राइट. लेकिन बरीटो आपने देखा, जैसे हमारा काठी रोल में क्या होता है, ब्रेड है, मीट है, उसे टाइटली रोल कर दिया. कितना, इतना पतला होगा, इससे ऊपर इतना मोटा तो नहीं हो सकता, इतना ही होगा. बरीटो, और हमारी ब्रेड मोटी होती है, बरीटो की ब्रेड तोरतिया होती है पतली, और इतना मोटा बरीटो बनता है. इतनी स्टफिंग ही स्टफिंग होती है, पतली सी ब्रेड होती है. चावल भरते हैं, मीट भरते हैं, राजमा भरते हैं, सालसा डालते हैं, एवोकाडो डालते हैं, सार क्रीम डालते हैं, 36 चीज़ें डालते हैं, और इतना मोटा कर देते हैं सर. ठीक उसी तरीके से जैसे गधे को देखा है, जिसके ऊपर, डोंकी के ऊपर लोग इतना सामान लाद देते हैं, इतना टाइनी सा गधा होता है, इतना लाद देते हैं. देखा है पुराने ज़माने में. अब तो गधे और सामान दिखता नहीं, सब मोटराइज हो गया. तो एक ज़माने में कभी देखो, गधे के ऊपर बहुत सारा सामान लादते हैं और वो बेचारे को खींचना पड़ता है. दैट इज़ द वे बरीटो इज़, के बहुत ज़्यादा सामान एक ब्रेड के अंदर भरा हुआ है. दैट्स वाई बरीटो कम्स फ्रॉम द वर्ड बरो, विच मीन्स डोंकी, लिटिल डोंकी, छोटा सा डोंकी. Sir, it is baked or नथिंग, जस्ट पैन पे सेक देते हैं बस, हल्का सा पकाने के बाद. रोटी बनी होती है, तोरतिया बोलते हैं उसे. इट कुड बी अ कॉर्न तोरतिया, इट कुड बी अ व्हीट तोरतिया. उसके अंदर खूब सारा बटर राइस हर्ब्स के साथ. जाके खा के आओ ना, टाको बेल नहीं खुला यहाँ पे. Try it out so that you know what a burrito is, what a taco is. All of these things are important, but it comes from the word burro, which means little donkey, and possibly could have been the thought behind it. कि गधे को इतना सामान ला दे, वैसे बेचारी ब्रेड के अंदर, ये पतली सी ब्रेड के अंदर इतना सारा ठूस दिया. स्टफिंग ही स्टफिंग होती है. So if you were to look at a burrito, okay जी, मैं आपको दिखाता हूँ. मैंने यहाँ पे कुछ सीखा था. हैं? आज ही खाओगे. वेरी गुड. आओ, सॉरी हो गया. ये वो गूगल कैसे आता है इसमें? हाँ, गूगल कैसे आता है इसमें? शायद इसमें. ये रहा, आ गया. होल्ड ऑन. हो गया. ये तो फिर भी बहुत ही कम है.
ये बुरीटो नहीं है। फ्राइसोस में मिलता है। हाँ, वहाँ पे भी मिलता है, इतना जड़ तक भरा हुआ। That is why possibly it could have been from the word burro, means little donkey, burro से burrito, okay. बिल्कुल भरा हुआ वहीं पे। ये काठी रोल है, लुक एट द साइज, ये भी बड़ा तसल्ली से भरा हुआ है, बट है दोनों रोटी पे बोटी के एग्जाम्पल, ठीक है। नाउ गाड़ी हम मोड़ेंगे हॉट डॉग की तरफ। टाकोस तो यहाँ का डिश नहीं है। फिर मैक्सिकन है टाको, नाम भी इंडियन नहीं है। अच्छा, हॉट डॉग खाया सबने? हॉट डॉग के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? स्टार्ट फ्रॉम द बेस, ब्रेड, एक दो तीन चार चीजें। अब उसके ऊपर आप बारबेक्यू डालो, मीट्स डालो, कुछ डालो, वो चलता रहेगा, बट ये चार चीजें इज हॉट डॉग। हॉट डॉग क्विट एसेंशियली कहाँ की डिश है? अमेरिकन, अमेरिका में भी प्राइमरीली न्यूयॉर्क, वहां पर छोटे छोटे ठेले हैं, ठेलों पर आपको हॉट डॉग मिलेगा, और आज से नहीं कई सालों से। लेकिन इंटरेस्टिंगली इसका नाम हॉट डॉग, कोई एक सैंडविच का नाम गरम कुत्ता क्यों बोलेगा? वाई? इंटरेस्टिंग। वी ऑल हैव ईटन हॉट डॉग्स। नाउ अंडरस्टैंड द हिस्ट्री बिहाइंड हॉट डॉग्स। जर्मनी में 19th सेंचुरी में देयर वाज लॉट ऑफ माइग्रेशन, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, और उससे पहले से, in order to find work, there are a lot of people who migrated, and there's a substantial German population that migrated to US, especially New York. और वहाँ पर जब वो गए तो हर किसी का पैसा तो होता नहीं था, तो lot of butchers who also went, who knew how to make sausages, started making sausages and started selling sausages. अब वो सॉसेजेस जो बेचते थे, यूजली सॉसेजेस कैसे होती है, आप सॉसेज जब बनाते हो, आप या तो पानी में उबालो उसको, उबलती उबलती सॉसेज आप दे दो और उसे खा लो, या उसको आप ग्रिल कर लो और खा लो। सो इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्नैक, और क्योंकि जर्मन्स आर नोन फॉर मेकिंग गुड क्वालिटी सॉसेजेस एंड कोल्ड मीट्स, वर्ल्ड ओवर जाने जाते थे, तो उनका बिकता था। और क्योंकि उसको खाने में वो गर्मा गर्म देते थे, स्टॉल पे तो आपको फटाफट देते हैं, तो किसी अक्लमंद ने कहा यार कि क्यों ना इसको मैं एक ब्रेड में रख दूं सॉसेज को, ताकि खाते हुए हाथ ना चले या मुंह ना चले, एंड इट्स इजी टू ईट, जस्ट लाइक काटी। और उसी के ऊपर किसी ने केचप और मस्टर्ड डाली, एंड यू गेट योर हॉट डॉग। टेक्निकली बर्गर, हॉट डॉग, देयर व्हाट आर दे सैंडविचेस, ब्रेड, मीट, सॉसेस, डन। सो दिस इज हाउ हॉट डॉग वाज born, but the name, so there is a German dog. There's a German dog breed called Dachshund. Have you heard? What's unique about him? लंबी। अगर इसकी मुंडी हटा दो तो ये सॉसेज की तरह लगता है, समवॉट, लगता नहीं बट कह सकते हो, राइट? तो इसे सॉसेज डॉग भी बोलते हैं। और जब जर्मन्स आए थे तो ऐसा कहते हैं, कई लोग अपने डॉग्स को तो कोई छोड़ता नहीं ना, बच्चे की तरह होते, तो दे डॉग गॉट देयर डैशंड डॉग्स ऑल्सो। और क्योंकि स्टॉल पे काम कर रहे तो वहीं पे उस डैशंड को उन्होंने बांधा हुआ है कि भाई तो यहीं पे रहे, काम करेंगे फिर घर जाएंगे, फिर आएंगे काम करेंगे घर जाएंगे, स्ट्रगलिंग डेज। तो जो वो स्टॉल थे वहाँ पर ये सॉसेज, वहाँ से नाम पड़ा सॉसेज डॉग, के साला ये तो सॉसेज बेच रहे हैं और नाम भी दिखने भी सॉसेज है, तो उसका नाम ही सॉसेज डॉग डाल दिया उन्होंने। तो यहाँ से
वो गर्मा गर्म जो सॉसेज दे रहे थे, सॉसेज डॉग साथ में देख रहा था, तो वो सॉसेज और डॉग उन्होंने इंटरचेंज करके उन्होंने हॉट डॉग लिख दिया, एंड वहां से कहीं से नाम आया। ऑल्सो जर्मनी में कई जगहों पर ऐसा कहते हैं कि एक टाइम था जहां पर डॉग मीट वॉज ईटन एंड वो उसकी सॉसेजेस भी बनाते थे, विच डज नॉट मीन के दैट जब ये न्यूयॉर्क आए तो वहाँ पर डॉग मीट सर्व कर रहे थे, बिकॉज दैट मार्केट वॉजंट ईटिंग डॉग मीट और ऑल जर्मन्स वर ईटिंग डॉग मीट, ऐसा नहीं है। इट इज सेड दैट सर्टेन एरियाज और विलेजेस वर ईटिंग डॉग मीट, राइट। और तो कई लोगों का था अरे सॉसेज में तो डॉग डाला हुआ है, डॉग बंधा हुआ है, तो वो डॉग वर्ड आ गया, हालांकि ऐसा नहीं था। whatever meat that they were using, whatever they would eat, they were eating that meat. तो यहाँ से पड़ा नाम हॉट डॉग, कि गर्मा गर्म वो सॉसेज दे रहे हैं, सॉसेज एंड डॉग, क्योंकि डॉग सॉसेज डॉग है, दे इंटरचेंज द नेम। इट्स अ वेरी क्यूट ब्रीड, वेरी यूनिक लुकिंग। That's my Dachshund. And that's how this entire hot dog came into being. Interesting? Yes. Better be. Just about time. Now we come to jalfrezi. Have you heard jalfrezi? Veg jalfrezi, paneer jalfrezi. सुना या नहीं सुना? नहीं सुना? Okay. So 25 years back when I started my career, most Indian restaurants would serve jalfrezi. Most Indian restaurants, whether चिकन जालफ्रेजी, मटन जालफ्रेजी, पनीर जालफ्रेजी, वेज जालफ्रेजी, जैसे अभी दाल मखनी, पनीर मखनी, एवरी इंडियन रेस्टोरेंट, पंजाबी रेस्टोरेंट वुड हैव जालफ्रेजी, विल बाय हुक और क्रुक विल बी देयर। 5-star होटल, ढाबा, नॉर्मल रेस्टोरेंट, जालफ्रेजी यू विल गेट। अब वो आउट ऑफ थोड़ा सा पुरानी होगी, पीपल डोंट रिकॉल एंड डोंट रिमेंबर एंड मूव्ड ऑन। यूके के अंदर आप जाओगे, आपको पनीर बटर मसाला, चिकन टिक्का मसाला, ऑल दैट जैज, विंडालू एंड जालफ्रेजी आज भी मिलेगी यूके के रेस्टोरेंट्स में। वेरी वेरी पॉपुलर जालफ्रेजी। इंटरेस्टिंगली जालफ्रेजी का पहला वर्ड क्या है, विच मीन्स तीखा, स्पाइसी। स्पाइसी। और फ्रेजी का possibly what it meant was stir fry. Spicy and stir fried was jalfrezi. Now this jalfrezi you should try and order. आपको कोलकाता में मिल जाएगा, कोई ना कोई रेस्टोरेंट सर्व कर रहा है, लेकिन उसका जो वर्जन आपको मिलेगा बड़ा अलग सा होगा। How it started? Side story. British when पार्टीज होती थी तो क्या करते थे, बुफे लगते थे। हॉट डिशेस भी होती थी, कोल्ड डिशेस भी। कोल्ड डिशेस में क्या होगी, कोल्ड कट्स, कोल्ड मीट्स, सलामी, सॉसेजेस, ऑल ऑफ दैट। तो जो कोल्ड सेक्शन है, यू कांट कीप इट फॉर एवर। जैसे टर्की भी है, कोल्ड कार्व करी है, वो जल्दी खराब होता है। हॉट खाना इतनी जल्दी खराब नहीं होता, बट एनीवे वो वहां पर सामान पड़ा हुआ है, पार्टी खत्म, खाना बनाने वाला कौन, Indians, because they would hire Indian cooks, Indian help in their houses. अब ये जो कोल्ड मीट बचा हुआ है, जो इंडियन कुक्स है उन्होंने क्या किया, उनको छोटा 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 रफली कट किया और मिक्स कर दिया सारा कोल्ड मीट। गोरों के खाने में सॉल्ट, पेपर, हर्ब्स, मसाले तो होते नहीं, वी इंडियंस लाइक स्पाइसी, तो उन्होंने क्या किया, घी डाला कढ़ाई में, प्याज डाला, खूब सारा झाल, हरी मिर्च डाली, मीट्स डाले और उसको स्टर फ्राई किया अच्छे से, और बैठ के खाए, चटपटा स्पाइसी स्टर फ्राइड बना दिया, एंड दैट बिकेम jalfrezi. Now this may have caught attention of some Britisher or somebody who travelled to UK and introduced this on the menu, jalfrezi. In fact, there is a book which was republished or published in 1880, which the Indian cookery book, जिसके अंदर jalfrezi लिखा हुआ है, jalfrezi ना लिख के, where the recipe is ghee, onions, green chilies, salt and cold meats cut together and stir fried.
1880 में अगर वो बुक में लिखा है, इससे पहले वो खा रहे होंगे, उसके बाद किसी ने लिखित में लिखा होगा, तो 1880 से पहले की वो डिश चलती आ रही है, विच इज एब्सोल्युटली फिट्स इनटू अ स्टोरी के किसी ब्रिटिश के गवर्नर के घर पर इंडियन कुक्स ने उनको अपना चखना बना के खा लिया। When it went to UK, people started adding tomatoes, हरी मिर्च, लाल मिर्च, peppers, bell peppers, गाजर भी, वेज वर्जन भी, वीगन वर्जन भी, हर तरीके का वर्जन अब बन गया। तो जालफ्रेजी इज अ वेरी पॉपुलर यूके डिश, नाउ अ यूके डिश, बट बॉर्न इन इंडिया, मेड फेमस इन यूके। हम आप लोगों ने किसी ने खाई जालफ्रेजी ना? किसी ने नहीं खाई? So it's a quite essential Bengali forgotten dish, you know, which has a British influence, which is very interesting, right? So next time round, try look for jalfrezi. What version you will find over here will be very different from what the original recipe was. But it's interesting to know that there is so much of history behind our food. हमारी culture पुराना है तो हमारा खाना भी पुराना है, तो हमारे तौर तरीके भी पुराने हैं। I can go on, but I think we have some time restrictions. But how is this theory class? I'm glad एक या दो बंदों के अलावा किसी ने बात नहीं। Very interesting, sir. Interesting था? Interesting, sir. Yes, sir. याद रहेगा? Sir, hot dog was more interesting than others. हाँ जी? Hot dog story was more interesting than others. हाँ, you start आराम से, हल्का, धीरे धीरे Chef, हाँ जी। what about corn dogs? कॉर्न डॉग्स, उसके ऊपर आप कॉर्न का बैटर लगाकर उसको फ्राई। देखो एक बार आपने इस पेन को बना लिया, अब आप खेलते रहोगे। मैं पेन में पीछे एक पेंसिल भी लगा दूंगी, मैं इसको एक ऐसा क्लिप लगाऊंगी, या आप यहाँ पे भी टांग सकते हो, मैं मैग्नेटिक कर दूंगी, यहाँ पे भी चिपक जाएगा, मैं इसके ऊपर कलर्स भी डाल दूंगी, मैं इसको मोटा बना दूंगा, ऐसे भी खुलेगा, ऐसे कोई ऐसे खुलेगा। सो वो वेरिएशंस होती रहती है। खाना ना इज लाइक अ लिविंग बीइंग, इट इज एवर इवॉल्विंग, वो वैसा का वैसा रहता ही, चेंज होता रहता है। Chef, in Champaran, there is Champaran. Along with that, they serve tash mutton also. What is tash? ताश मटन मैंने नहीं लगा। ताश मटन, ताश के कबाब खाए, ताश कबाब, वेयर ईच कबाब इज शेप्ड, उसको जैसे fry कि करके देते हैं। हाँ वो सूखा सूखा फ्राई करके। ताश कबाब जो है वो बेसिकली होते हैं जैसे प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, उसके अंदर क्या क्या होता है प्लेइंग कार्ड्स में? ये होता है, और एक आखिरी ऐसा होता है मेरे ख्याल। ऐसे ये होता है ना ताश में, यही चार इसकी शेप के कबाब, शेप जहाँ तक मुझे पता है, ताश कबाब वहाँ पे ताश को तो वही मटन को just Shape करते हैं। फ्राई करके। शेप, हाँ फ्राई करते हैं जो लोग, शेप ताश के। दिल्ली में और एक बटर चिकन जो बनता है, ऑलमोस्ट चिकन के अंदर लॉट ऑफ बटर एंड फ्रेश क्रीम डाल के, मसाला डाल के, वो कहाँ से शुरू हुआ? वही तो है बटर चिकन, और जो टमाटो ग्रेवी में बनता है, वो टोमेटो ग्रेवी में तो बनता है, वो सब ये डालने के बाद दिल्ली में जामा मस्जिद के साइड में जो वो जो ऐसे बटर में टॉस करके देते हैं, वो तो सिर्फ तंदूरी चिकन देते हैं विद लॉट्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल। खाओ। संजू बाबा का भी एक फेमस खाना है इन बॉम्बे। रियली लाइक द क्लास। हाँ वो पता नहीं बाबू, मैंने कभी नायक खलनायक चिकन तो नहीं खाया मैंने, मेरे को भी नहीं पता, बट होगा, आई एम श्योर एनीथिंग इज पॉसिबल, एनीथिंग इज पॉसिबल। I can go on and on. Lots. There's some very interesting ones which I will share with you the next time. 65, 25, 95, सब करें. Discuss tomato ketchup. Huh? Where does tomato ketchup, when did it start from? Not tomato ketchup.
just ketchup. Sir, China, I guess. Very good, China, right. And what was the key ingredient in that ketchup? Sir, oyster. Correct, to a certain extent. Small fish, to a certain degree oysters also. And fish के internals, आंतड़ियाँ, skin, bones, सब. That was ketchup. Until one day, someday, tomatoes were added by Americans and fish was taken out. And we got our tomato ketchup. And the name ketchup, जो ये fish sauce बनाते थे Chinese, उसको कहते थे ketchup or ketchup, which the Europeans couldn't pronounce, British couldn't pronounce, so they ketchup or ketchup became ketchup. Ketchup doesn't mean anything. It's not a word के base का मतलब ही है. It comes from the Chinese mispronounced name, ketchup. पर्टिकुलरली सिर्फ टमाटो और केचप होता है कि और भी चीज़ होती है? अब तो टोमेटो का ही हम बना रहे हैं. तो चलो क्विकली एक बता ही देता हूँ इसकी हिस्ट्री जोग्राफी. तो चाइना के अंदर ना ये स्टार्ट हुई थी. बेसिकली चाइनीज फूड जो आप देखोगे उसके अंदर ना डीप फ्लेवर होता है, उमामी फ्लेवर, चाहे वो अजीनोमोटो डाल के आए या चाहे वो जो स्टॉक बनाते हैं, चाहे वो फिश सॉस या सोया सॉस से आए. तो क्या होता है कि जब छोटी मछली आप पकड़ते हो, इट्स वेरी डिफिकल्ट. हाउ डू यू क्लीन इट, व्हाट डू यू डू विद इट? आइदर यू ड्राई एंड यूज इट लेटर, और व्हाट दे स्टार्टेड डूइंग इट, साबुत वो छोटी छोटी मछली, छोटे ऑयस्टर्स, छोटा सी फूड जो मिला, उनको उन्होंने नमक लगाया, एक जार में डाला और फर्मेंट कर दिया, होल मछली विदाउट क्लीनिंग. अब जब मछली सड़ती है, फर्मेंट होती है, उसके अंदर स्मेल कितनी आती है? स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है. तो वो स्ट्रॉन्ग स्मेल डेवलप होती है, धीरे 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 उसका जो बैक्टीरिया बिकॉज ऑफ द सॉल्ट कंटेंट वो मर जाता है. फिर उसे स्ट्रेन करते हैं, छानते हैं, हमें क्या मिल गया? फिश सॉस. पका दिया, जिसके अंदर नमक भी बहुत तेज है क्योंकि प्रिजर्व किया, और उसको आप थोड़ा सा डिशेस में डालो तो डिशेस का फ्लेवर एनहांस होता है. ठीक तो नहीं होता थिक भी होता है. सन में जितनी देर रखोगे लिक्विड थिक भी होता है. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एवेपोरेशन होता है, थिक भी होता है. बट कमर्शियली जो अवेलेबल है वैसा थिक है नहीं है, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी. बट आई एम गिविंग अ जिस्ट. तो चाइना के साथ ट्रेड रिलेशंस थे एंड ब्रिटिश रियलाइज्ड कि व्हेन यू टेक दिस सॉस on its own it's strong, pungent and salty, but if you put it on your steak or you put it on your meat and marinate, it tastes much better. So they took this ketchup with them and they started experimenting with it. Somebody added beer to it, somebody added oyster. ब्रांड है जो बहुत फेमस है, वो स्टेक सॉस देते हैं. वो सारे इसी दौरान निकले थे. धीरे धीरे कईयों में फिश उन्होंने कम्प्लीटली हटा दी और मशरूम्स और अदर हर्ब्स पे आ गए, कईयों ने रखी. बट हुआ क्या, जब ब्रिटिश इस आइलैंड से लोग यूएस माइग्रेट किए, वहाँ पर ये लेकर गए. और साउथ अमेरिका में कहते हैं टमाटर वहाँ का नेटिव है, वहाँ के उत्पाद है. तो पीपल स्टार्टेड एडिंग टोमेटोज टू इट. अलग अलग लोग, पीपल स्टार्टेड एडिंग विनेगर टू इट कि भाई उसको प्रिजर्व करेंगे. किसी ने सॉल्ट को कम किया, किसी ने चीनी डाल दी, राइट. और अलग अलग एक्सपेरिमेंटेशन हुए. तो एक भाई साहब है जेम्स मीज, उन्होंने डाला पहली दफ़ा टमाटर. और एक है मिस्टर हाइंस, जिनकी हाइंस टोमेटो केचप आती है. उन्होंने जो फॉर्मूला अपना बनाया जिसके अंदर टमाटर थे, मछली नहीं थी, विनेगर था, शुगर डाला, मशरूम्स हटा दिया, ऑयस्टर्स हटा दिए, और उन्होंने क्या किया, कांच की बोतल में डाला जिसके अंदर ना वो उसका बढ़िया लाल रंग दिख रहा था सॉस का. तो वो सॉस बड़ी फेमस हो गई और उन्होंने अपने नाम हाइंस के नाम से उन्होंने वो सॉस बेचनी शुरू करी. और वहाँ से फिर टोमेटो केचप, केचप से टोमेटो केचप हुआ या केचप हुआ, और वो सॉस वहाँ से बनी. वो इतनी हिट हुई कि उसका देखी देखी सब आ गए. और यहाँ से आप देखो यूएस में ऑलमोस्ट 90 से रिकॉर्ड जो कहते हैं 97% ऑफ होम्स इन यूएस विल फाइंड अ टोमेटो केचप. इनफैक्ट उनको छोड़ो, इंडिया में देखो हर घर में टोमेटो केचप होती है कि नहीं होती? बनी कहाँ से? यूएस से. यूएस से पहले ब्रिटेन, ब्रिटेन से पहले चाइना.
कहाँ से वो चीज़ कैसे ट्रैवल करके किस तरीके से एक फिश को सड़ाकर जो सॉस बन रही थी वो टोमेटो के फॉर्म में आ गई। एंड वी ऑल नो टोमेटो केचप सो वेल, वी लव इट। वो अलग बात है, उसका लेबल पढ़ो, उसमें विनेगर, शुगर और क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होती हैं। स्टार्ट रीडिंग लेबल्स। ठीक है जी, होप यू एंजॉयड, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।